تو یہ چاہتے ہیں بلاتے ہیں، تو جتنے آئے ہیں نا یہ انہی کے بلاوے پر آئے ہیں۔ اور میں ایک دوسری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر جگہ ہم لوگ جاتے ہیں، نہ جانے کتنی جگہوں پر پروگرام کے لیے جاتے ہیں، کہیں پر پروگرام کرنے والا جو ہوتا ہے جس کی تقریر کو سننے کے لیے جاتے ہیں وہ کوئی عام مولوی ہوتا ہے، کسی اور جگہ جاتے ہیں تو کوئی اور ہوتا ہے، لیکن برادران اہل سنت یہاں جو آئے ہیں تو یہاں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا، اور ذکر کرنے والا بھی کوئی اور نہیں، انہی کا بیٹا سید امین القادری ہوگا۔ سنت یہ انہی کی محبتیں ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے جس طرح کی محبت کا لوگ اظہار کرتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں کہ حضور غوث اعظم کے بیٹے سے ایسی محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم جب میرا غوث موجود ہوگا ان سے کیسی محبت کی جاتی ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ تو جتنے آئے ہیں وہ سب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلاوے پر آئے ہیں، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کا مزاج بنا لو، کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر جو چلتا ہے، ان کے راستے پر جو چلتا ہے، کامیابی و کامرانی اسی کا مقدر ہوتی ہے۔ میرا امام بریلی کی سرزمین سے ارشاد فرماتا ہے، لہد میں عشق رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرا امام کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم جو ہے وہ اصل میں راہ خدا ہے، یعنی اسی راہ پر چلنا ہے جو تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے۔ اگر اس راہ سے آدمی بھٹکا تباہ و برباد ہو جائے گا، اگر اس راہ پر چلتا چلا گیا کامیابی اس کا مقدر ہو جائے گی۔ اور یہ سب میرا امام ہی نہیں کہتا بلکہ میرے امام سے پہلے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام سنیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ مجھ سے جب دعا مانگو تو دعا اس طرح مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام و اکرام فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان حضرات انعام ہوا جن پر ان کے راستے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ، حضرات یہ دندانہ کی سرزمین پر آنے والے یا پاس میں علاقہ ہے اجین، اور بھی دوسرے علاقے دیکھے ہوں گے، وہابیوں اور دیوبندیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوں گے، لیکن میں آج آپ کو ایک طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں، مجھے وقت کم ملا ہے کچھ دیر بولوں، لے کر چلنا چاہتا ہوں ایک اور گستاخ فرقہ بھی جو بہت تیزی سے ابھی سر اٹھا رہا ہے، شاید اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حضرات وہ گستاخ فرقہ جس کا نام اس وقت میں اور ہمیشہ سے رافضی شیعہ جو سنیوں کے اندر گھس چکے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام پر بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ اس دور میں اگر بچنا ہے تو امام احمد رضا کا دامن تھامنا ہوگا، سبحان اللہ سبحان، کیونکہ راستہ وہی راستہ حق ہے، امام احمد رضا کے دامن سے جو جڑا ہوا ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اسی سے راستہ پر ہے۔ حضرات رافضیت اگر وہابیت سے بچنا ہو امام احمد رضا، رافضیت سے بچنا ہو امام احمد رضا، ہاں اگر قادیانیت سے بچنا ہو امام احمد رضا، اگر دیوبندیت سے بچنا ہو امام احمد رضا، سبحان اللہ، ہاں یہی دامن، یہ دامن پکڑ کے چلے جاؤ، جس سے بھی بچنا ہو اس دامن کو پکڑو گے اور بچتے چلے جاؤ گے۔ حضرات کیونکہ قادیانیوں کو بھی اگر تکلیف ہے تو امام احمد رضا سے، آپ کہہ رہے ہوں گے غوث اعظم کی محفل ہے امام احمد رضا کا ذکر کیوں، تو امام احمد رضا اس دور میں غوث اعظم کا سچا جانشین ہے۔ ہاں انہوں نے فرمایا تجھ سے در سے ساک اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت، بے شک سبحان اللہ، در سے ساک اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، میں سوچتا ہوں جو سخت سے نسبت رکھتا ہے جب اس کے علم کا عالم یہ ہے، سبحان اللہ، جس کا سگ ہے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ امام احمد رضا کے دامن کو پکڑ کر رکھے ہر طرح درود پاک پڑھیں۔ بنا مولانا محمد بارک سلیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
तो इमाम अहमद रजा का दामन पकड़े, राफियत से बचना हो तो इमाम अहमद रजा, कादियानियत से बचना हो तो इमाम अहमद रजा, शियों से बचना हो तो इमाम अहमद रजा, मुजावरों से बचना हो तो इमाम अहमद रजा, सुभान अल्लाह। देवबंदियों से बचना हो तो इमाम अहमद रजा। और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अहमद रजा का मसलक जो मसलक है वही मसलक गौसे आजम है, वही मसलक गौसे आजम है। क्योंकि आओ गौसे आजम की बारगाह में तो गौसे आजम से पूछो, पढ़ो किताब गौसे आजम की, हुलियतुल तालिबीन पढ़ो तो गौसे आजम कहते हैं अल्लाह को मार, रसूल को मार, अबू बकर को मार, उमर को मार, उस्मान को मार, अली को मार, हसन को मार, हुसैन को मार, अबू जर को मार, उतबा को मार, अबू जर को मार, अबू हुरैरा को मार। इसी तरह तमाम सहाबा के ताल्लुक से गौसे आजम फरमाते मार, और फिर कहते अमीर मुआविया को भी मार, और फिर कहते चोरों को न माने उसको मत मार, क्योंकि वो जन्नत में नहीं जा सकता। जो सहाबा को छोड़ दे, जो सहाबा के ताबड़ में होता है, अल्लाह उसे ही जन्नत के रास्ता अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल। मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना अशफाक अहमद साहब किबला। नारे तकबीर। ये गौसे आजम है, बोलो बोलो बोलो, ये गौसे आजम है, बोलो गौसे आजम है। अब जो गौसे आजम को मानता है अमीर मुआविया को मानेगा, और जो अमीर मुआविया को नहीं मानता समझ लो गौसे आजम कभी नहीं, गौसे आजम कभी नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, क्योंकि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको माना है। और इसी को इमाम अहमद रज़ा ने कहा कि हक बदस्ती हैदर कर रहा, लेकिन मुआविया भी हमारे सरदार था। बिरादरान अहले सुन्नत, तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मानने वाला ये हो ही नहीं सकता तो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे। और याद रखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हुजूर सरवर कायनात के हर सहाबी से मोहब्बत की जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सरवर कायनात के सहाबी वो है जिनके बारे में कुरान मुक़द्दस ने फरमाया कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमा दिया। इसलिए आजकल नारा लगाया जाता है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, और यकीनन हर सहाबी जन्नती है, क्योंकि सरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ताल्लुक से फरमाया कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाहु अकबर। जब सूरह हदीद में अल्लाह तबारक व तआला किसी को जन्नती होने की बशारत देते तो कोई ऐरा गैरा लुत्फु खैरा ये कहता हुआ नजर आए, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो बदलने आते हैं अल्लाह उन्हें बदल दिया करता है। और देख लो, वरना तुमने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले एक बदलने आया था, अल्लाह ने उसको बदल दिया। और वो शायर का शेर मेरे जहन में उसको देख कर आता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अरे बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान कभी नहीं बदला गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो अगर कोई कहे फला किताब में लिखा है, कोई कहे फला किताब में लिखा है, कोई कहे फला किताब में लिखा है, तो कहना सूरह हदीद कुरान मुक़द्दस है, सूरह हदीद है, कुरान मुक़द्दस है, और आयत नंबर 10 है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। तू कहता ये लिखा है, मैं कहता हूँ कुरान में लिखा है हर सहाबी जन्नती है। और जन्नतियों के बारे में पूरा नहीं बोला जाता, बल्कि जन्नतियों के नक्शे कदम पर चला जाता है, कामयाबी इसी में होती है। तो कुरान में लिखा है कि वो जन्नती है। अब अगर कोई ये कहे उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, तो कह देना कि मुझे तो बता वो सहाबी किसी अमल से बने थे? बोलो, नमाज पढ़ने की वजह से सहाबी है? बोलो ना, नहीं है ना? रोजा रखने की वजह से सहाबी है? बताओ कोई नेकी करने की वजह से सहाबी बने थे? जवाब आएगा नहीं। फिर ऐसे बने थे, जवाब आएगा मुस्तफा का चेहरा देखा था, ईमान की हालत में हुजूर का चेहरा देखा और दामन मुस्तफा से लिपटे रहे तो सहाबी हुए। पता ये लगा कि सहाबी अमल से बनता ही नहीं है, तो फिर अमल देखना ही नहीं है। या तो देखा ये जाएगा कि तमाम इबादतें एक तरफ, वहां तो सरकार की बारगाह की सोहबत में की जाएगी, और ये कहा जाएगा कि न तकवा पर, न नात पर, न सोहद इर्तिका पर है,
हजरात मैं अर्ज कर रहा था कि इस फितरे से बचने की भी जरूरत है, इस फितरे से भी बचो, क्योंकि कहता है कि भाई जो अली का नहीं वो हमारा नहीं। तो उससे पूछो इमाम हसन को मालूम था कि नहीं, मालूम था या नहीं? जवाब आएगा हाँ मालूम था। तो तू इमाम हसन से ज्यादा अली से मोहब्बत करने वाला है। और चल थोड़ी देर के लिए माज़अल्लाह 100 बार माज़अल्लाह, हजारों बार माज़अल्लाह। अगर कोई खबीस, कोई मरदूद, कोई गुस्ताख ये कहते कि नहीं इमाम हसन माज़अल्लाह डरते थे इसलिए लड़े नहीं, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जमामती और उनकी बहादुरी पर तो किसी को शक नहीं हो सकता। बोलो हो सकता है जब 72 को लेकर के मुकाबले पर जा सकते हैं तो पहले तो हजारों की तादाद में लोग थे, लेकिन 15 साल तक अमीर मुआविया ने खिलाफत को तस्लीम किया और अमीर मुआविया से नजराने लेते रहे। अल्लाह अकबर, बरदरान मिल्लत इस्लामिया। तो अगर कोई हजरत इमाम हसन के ताल्लुक से ये जिंदगी सहन में रखे तो इमाम हुसैन का किरदार सामने रखकर बताओ कि इमाम हुसैन उनके बेटे को एक पल के लिए बर्दाश्त न कर सके, अगर अमीर मुआविया गलत होते तो वहां भी बर्दाश्त न करते। और एक बात और अर्ज कर दूं, कोई कहे कि मुआविया का बेटा था माज़अल्लाह इसलिए अमीर मुआविया भी बुरे हैं, तो मैं तुमसे कहता हूं कि नूह का भी तो बेटा था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भी तो एक बेटा था, वो भी वो जहन्नमी था, उस पर भी तो अजाब आया था। तो पता ये लगा बेटा होने से कुछ नहीं होता, जब अमल देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कौन सही है कौन गलत है। तो बरदरान मिल्लत इस्लामिया, इस दौर में अगर अपने आप को बचाना है, अगर अपने आप को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है, मुस्तफा करीम से सच्ची मोहब्बत करना है, हुजूर के दामन करम से लिपट कर रहना है, तो हम सबको मिलकर इस दौर में इमाम अहमद रजा का दामन थामना होगा, जिसको मसलके आला हजरत कहा जाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसी मसलके आला हजरत पर जो कायम रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला वही कामयाब होगा। कामयाबी उसी के लिए है जो मसलके आला हजरत पर होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना तबीबिना करीमिना। हाँ मुझे हजरात ने बोला दिया था मैंने कहा पूरे करें। तो इस दौर में इमाम अहमद रजा, बोलो इमाम अहमद रजा, आप लोग बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बोले मुझे मालूम है आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे इतना बता दूं कि कभी कभी बारिश होने से पहले ना चंद बूंदे गिरती, बारिश होने से पहले हल्की सी बूंदें गिरती हैं, कभी कभी जो है तो बादल गरजते हैं और उसके बाद मूसलाधार बारिश होती है। तो यही समझ रहे कि वो जो बारिश होने वाली है ना उससे पहले चंद बूंदें गिर रही है। हाँ थोड़ा थोड़ा बादल गरज रहे हैं, लेकिन जब बारिश होने वाली है तो उस बारिश में नहाने का मजा तो तभी है ना जब बादल की कड़क को भी सुने और बूंदों को भी देखते रहे। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात तो इसलिए ये समझ रहे, मुझे मालूम है किसी और का इंतजार है क्योंकि शहंशाह खिताबत अंदर आराम फरमा रहे हैं, आपकी आंखों के सामने नहीं है, थके हुए हैं से आराम फरमा रहे और वाकई। और मैं एक बात और अर्ज कर दूंगा, बात आ गई तो अर्ज करूं कि आपकी जो मोहब्बतों का उनके साथ अंदाज होता है, कभी कभी ये मोहब्बत ना बड़ी भारी पड़ जाती है, तो ऐसा ना करें। मोहब्बत का एक अंदाज होना चाहिए और मोहब्बत में महबूब को तकलीफ नहीं दी जाती बल्कि उसकी इत्तिबा की जाती है, उससे मोहब्बत का तरीका ये है। हज़रात अहले सुन्नत आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ देते हुए नजर आते हैं, तो जब हजरत यहाँ पर आए तब भी आप मोहब्बत का इजहार करें लेकिन तकलीफ ना पहुंचाए, और जब हजरत यहाँ से जाए तब भी आप मोहब्बत का इजहार करें लेकिन तकलीफ ना पहुंचाए, क्योंकि तकलीफ पहुंचाने का हुक्म नहीं है। आप गौर तो करें, तकलीफ एक दूसरे को पहुंचाने से अल्लाह तबारक व तआला ने कितना मना फरमाया। आप जरा गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। आप हज बैतुल्लाह के लिए चले गए, खाना काबा में पहुंच गए, जितने हजरात बैठे हुए हैं और जो इधर देख रहे हैं, अगर वो सुभान अल्लाह कहते तो मैं उनके लिए दुआ कर दूं कि सारे हज को चले जाए।
तो जितने हैं तो हज में चले गए आप लोग और हज बैतुल्लाह कर रहे हैं, खाने काबा का तवाफ चल रहा है आपका। जब तवाफ काबा आप कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि आपको वहाँ हजर अस्वद को बोसा देना है, हजर अस्वद को चूमना है। लेकिन यहाँ भी शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि मुसलमानों को तकलीफ ना पहुंचाओ, वहाँ घुसने के लिए ऐसी कोशिश ना करो। अगर दूर से हो तो दूर ही से इस्लाम करते हुए गुजर जाओ। तो बिरदरान मिल्लत इस्लामिया अदब का तकाजा ये है कि दूर ही से इस्लाम करते हुए गुजर जाया जाए। तो यहाँ भी अदब होना चाहिए, क्योंकि वो जन्नती पत्थर है, हजरे अस्वद है। और यहाँ जो उलमा आते हैं ये उलमा कोई और नहीं, ये रसूलुल्लाह के नायब है और जिससे आप मोहब्बत का इजहार करते हैं और करना भी चाहिए। वो आलिम भी है, नायब भी है और शहजादा भी है। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा आप बताओ, अगर रसूलुल्लाह के शहजादे को आप तकलीफ पहुंचाए ना करें तो बताओ हुजूर राजी होंगे? कैसी मोहब्बत है आपकी? दीवाने हो जाते हैं, पैर कुचल दिया, हाथ खींच लिया, खजराना में आए तो हाथ में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई। अल्लाह अकबर। बिरदरान मिल्लत इस्लामिया मोहब्बत का तकाजा ये तो नहीं है कि इस तरह किया जाए कि इस तरह से खींचा जाए। मोहब्बत करना है, रसूलुल्लाह का शहजादा है, ये सोच कर मोहब्बत करो। सोच लो हुजूर के बेटे को तकलीफ हो, अल्लाह न करे अगर दिल से कुछ निकल जाए तब क्या होगा? हालांकि ये तो बड़ी बात है कि ये दरबार ही ऐसा है, यहाँ दिलों से कुछ निकलता नहीं, यहाँ तो तकलीफ पहुंचाने वालों को भी दुआएं दी जाती है। ये और बात है कि दरबार इस तरह का है कि यहाँ जो है ना तकलीफ पहुंचाने वालों को भी बददुआ नहीं देते, वहाँ भी दुआएं देते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में एक शख्स आया और आने के बाद वो पानी मांगता है आपसे। आंखों से अंधा था, हाथों से लुंजा था, पैरों से नंगा हो गया और इसी आलम में पानी मांग रहा है। किसी ने कहा बताए किसका घर है? कहा ये घर इमाम हुसैन के बेटे का घर है, पानी मांगता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसे पानी पिलाया। जब वो अच्छा ताज़ा हो गया, कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन मुझे पहचाना? कहा हाँ पहचान लिया, तू वही है ना जो नहरे फुरात पर पकड़ा दे रहा था, हमें पानी नहीं देने दिया था? उसने कहा हाँ। फिर आपने मुझे पानी क्यों पिलाया? फरमाया वो तेरा सर्फ था, ये मेरा सर्फ है। बेशक बेशक सुभान रसूलुल्लाह की औलाद है, बिरदरान मिल्लत इस्लामिया ये अंदाज अपना अपना होता है। तो ये और बात है कि वहाँ से दुआएं नहीं निकलती, वहाँ से दुआएं निकलती है, लेकिन आपको भी तो तरीका होना चाहिए। तो जब आप मोहब्बत का इजहार करें, हाथ छूमने को मिल जाए तो मोहब्बत से हाथ छूम ले, अगर हाथ पकड़ने को मिल जाए तो मोहब्बत से हाथ पकड़ ले, लेकिन अगर ना मिले तो दूर से खड़े होकर के भी गुजर जाए। बिरदरान मिल्लत इस्लामिया ये है मोहब्बत का तकाज़ा। हज़रात अहले सुन्नत बातें आपकी समझ में आ रही होगी कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हुजूर सरवरे कायनात की औलाद से भी मोहब्बत करे और उनके तमाम चाहने वालों से मोहब्बत की जाए। तो मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि महबूब को तकलीफ न पहुंचाई जाए, इसलिए इसका एहतियात रखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, रखेंगे इंशाअल्लाह। जितने हज़रात बैठे रखेंगे ना इंशाअल्लाह इसका एहतियात। जब हज़रत आएंगे तब भी ऐसा ना हो कि तकलीफ पहुंचाई जाए। नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर बताओ कौन कौन नहीं करेंगे? हाँ नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह? सब बैठेंगे, खड़े होकर इसका बात करेंगे। लेकिन अगर चूमने को मिल जाए तो सुभान अल्लाह, और ना भी मिले यार तो चेहरा देखने को मिल जाए, ये भी काफी है। ये कोई बड़ी ये कोई कम बात नहीं है यार, ये कोई कम बात थोड़ी है। अरे यार हिंदुस्तान में रहकर रसूलुल्लाह के बेटों का चेहरा देखने को मिले ये भी कोई कम बात नहीं है, ये भी शान है मुस्तफा करीम की। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया था इन्ना आतेना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिया का हुआ अब्तर। बिरदरान मिल्लत इस्लामिया वो जिसने कहा था हुजूर को अब्तर, उसकी औलादों का नामो निशान नहीं है। हाँ और जितने गुस्ताखे नबी गुजरे किसी की भी औलाद का पता नहीं। मिसाल के तौर पर अबू लहब की कोई औलाद नहीं, अबू जहल की औलादों का कोई पता नहीं, हालांकि एक साहबी हुए लेकिन बाद में कोई पता नहीं। उसके बाद और आगे बढ़े उतबा शैबा वलीद जितने भी थे, उबई बिन खल्फ, किसी की औलादों का पता नहीं। बल्कि आगे आ जाए इस सदी में तो थानवी की औलाद का भी कोई पता नहीं है। दिखता है बोलो ना यार, दो शादियां करी लेकिन एक भी बच्चा नहीं हुआ।
बाप भी नामर्द था, बेटा भी नामर्द पैदा हुआ। हाँ, आप कहेंगे बाप कैसे नामर्द था? मैं कहूंगा उसी की किताब में लिखा हुआ है कि बाप को मर्ज खारिज हुआ था। हाँ, जाकर देखो किताब, उसी की किताब में खुद उसने लिखा है बल्फसाद में कि बाप को मर्ज खारिज था, दवा पी ली, नामर्द हो गया, उसके बाद हम दोनों पैदा हुए। भैया जब बाप ही नामर्द हुआ तो पैदा कहां से हुआ? ये नबी करीम सरवरे कायनात की शान में गुस्ताखी का अंजाम है। थानवी का कोई बेटा नजर नहीं आता, नानोतवी का कोई बेटा नजर नहीं आता, गंगोई का कोई बेटा नजर नहीं आता। बोलो 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 बोलो, नजर आता है? नहीं नजर आता। और जो हुजूर के नाम पर अपनी जान को लुटाए, जो हुजूर के नाम पर अपनी जिंदगी कुर्बान करे, जो हुजूर के नाम पर पूरी जिंदगी गुजारे, जो रसूलुल्लाह का जिक्र करता हुआ नजर आए। और आगे बढ़ जाऊं मैं तो एक और पाखंडी अभी पैदा हुआ है जो गुस्ताखियां कर रहा है, उसको भी देख लो। पैदा कोई होने वाला ही नहीं है तो औलाद इसकी भी नजर नहीं आएगी। और मेरा ईमान पहले ही कह चुका कि मिट गए हैं, मिट जाएंगे आगा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हाँ, कभी नहीं मिटेगा चर्चा, लेकिन जिसने नाम लिया उसकी औलादें नजर आ रही है। अबू बकर ने नाम लिया, सिद्दीकी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उमर ने नाम लिया, फारूकी पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं। उस्मान ने नाम लिया, उस्मानी पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अली मुर्तजा ने नाम लिया, अली की औलादें इतनी हुई, किसी की औलादें इतनी हुई ही नहीं। हज़रात, इसी तरह और आगे बढ़ते चले जाए तो देखेंगे आप गौसे आजम को देखें, उनकी औलादें देखें, ख्वाजा गरीब नवाज की औलादें देखें, मखदूम सिमना की औलादें देखें। इस दौर में जब थानवी गंगोई नानोतवी अम्बेडकरी थे और ये सब की औलादें नजर नहीं आ रही, इनके मुकाबले में एक शेर नर था जिसका नाम इमाम अहमद रजा था। पूरी पूरे दुनिया के अंदर घूम कर देख लो, इमाम अहमद रजा की औलादें नजर आती है। हुजूर का जिक्र करो, नाम भी होगा और काम भी होगा। हुजूर का जिक्र करो, नाम भी होगा और काम भी होगा, क्योंकि हुजूर ही के जिक्र से सच्चे मिलती है। कोई नहीं पूछता किसी को, कोई किसी को नहीं पूछता। अगर हुजूर का जिक्र नहीं करता सैयद अमीनुल कादिर, किसी और की बात ना करूंगा। जितना जिक्र करते हैं वो जिक्र की बरकत है, अगर ना करते तो बताओ कोई पूछता? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जिक्र कर रहे हैं तो दीवाने की फौज लगी हुई है। ये सब हुजूर के जिक्र का सदका है। दामने हुजूर से लिपटा रहो, कामयाबी कामयाबी जब तो मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन उस दामने हुजूर से लिपटने के लिए इमाम अहमद रजा के इस शेर पर अपना जहन पूरी तरह मरकूज कर लो। इमाम अहमद रजा कहते हैं लहद में इस शेर पर शह दाग लेके चले। लहद बोलते हैं कब्र को, लहद कब्र, इश्क के रुखे शह का दाग लेके चल। हुजूर के इश्क का पहचान, लहद में हुजूर के चेहरे के इश्क का, लहर में हुजूर के रुख के इश्क का पहचान लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, कब्र अंधेरी होगी ना, बोलो ना, कब्र अंधेरी होगी तो अंधेरी रात सुनी थी तो चिराग लेके चले, क्योंकि हुजूर के इश्क का ही चिराग ना जलेगा। और फिर कहते तेरे गुलामों का या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अब अगर कोई कहे कि फला ऐसा है, कहना ख्वाजा ने कहा था, बोलो कहा था, कहेगा नहीं, फिर तू कौन होला कहने वाला? हाँ, कोई कहे कि ये नहीं करना चाहिए, कि ना निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, नहीं कहा था, फिर तू कौन होता कहने वाला? तू नहीं होता। और हमसे कोई कहे कि या रसूल अल्लाह कहते हो, किसने कहा था? हम कहेंगे अबू बकर ने कहा था। अबू बकर ने कहा था। किसने कहा था? अबू बकर ने कहा था। कहा था, कहने का हुक्म तो नहीं दिया था। कोई कह दे कि कहने का हुक्म तो नहीं दिया था, कहना नहीं, कहने का हुक्म भी दिया था। बोलो
कहने का हुक्म भी दिया था। वो कहे कैसे कहा कि न सुन हजरत उसामा बिन ज़ैद जब वो लश्कर के लिए लश्कर लेकर गए थे ना, जब मुसलमान कस्साब के मुकाबले में जब पहुंचे थे, अल्लाह अल्लाह, तो वहां जाकर अबू बकर से लोगों ने कहा था वो सामने जो हमारी लड़ाई करने वाला आ रहा है वो भी अपने आप को नबी कहता है, उसके मानने वाले भी नबी मानते हैं उसको, तो वो भी या नबी अल्लाह कहेंगे, वो भी इसी तरह का नारा लगाएंगे, उनके कपड़े भी हमारी तरह, उनकी सूरतें भी हमारी तरह, उनके जो इमामें भी हमारी तरह, तो फिर हम पहचानेंगे कैसे अपना कौन है बेगाना कौन है। तो हज़रत अबू बकर ने कहा था सामने आने वाले को अगर तुम पहचान न सको कि अपना कौन है या बेगाना कौन है, तो यह नारा लगाना या मोहम्मदा, नारा लगाना या मोहम्मदा। अगर सामने वाला भी जवाब में या मोहम्मदा कहे तो छोड़ देना, और वरना जो है तो कत्ल कर देना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो नारा लगाने का हुक्म किसने दिया? अबू बकर ने दिया था। अब पूछो, कोई हमसे पूछे कि बताओ मरने के बाद नबी जिंदा कहाँ है, हम कहेंगे हमको अबू बकर ने बताया, हम कहेंगे हमको अबू बकर ने बताया। बोलो ना, तुम्हारा अकीदा पेश कर रहा हूँ। हाँ, तो अबू बकर ने बताया। पूछेगा कोई कहाँ लिखा है, जवाब आएगा अबू बकर का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ। सरकार अबू बकर ने फरमाया मेरे जनाजे को हुजूर के दरवाजे पर ले जाकर रख देना, और वहीं से कहना कि हुजूर गुलाम आने चाहता है, इजाजत मिले तो आने देना, इजाजत न मिले तो ले जाना। पता लगा हज़रत अबू बकर का यकीन है कि इजाजत मिलेगी, नबी जिंदा है। बोलो नहीं आया, तभी तो इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। और कल मैं पढ़ रहा था यार, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा।